Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we are going to start a new chapter from our book Beehive, that is Packing, which is written by Jairam K. Jairam. Here we shall find about the way of packing. Before starting this chapter, I want to ask certain question from you. Do you like to do packing? Some of the student will say, I like to do packing, but some will say that it's a boring thing and I still become irritated by doing packing. Second question which I want to ask you, what is the proper way to do packing? Some of the student will say that I do my packing by keeping the hard thing on the bottom of the bag and soft thing on the upper part of the bag. So that is a correct way to do packing. But here in this chapter we shall find that some of the people who were engaged in packing, those were found to do packing in reverse order because they put the soft thing at the bottom of the bag and hard thing upon those things. So that was reverse order of doing packing. Here Jairam K. Jairam is the author or the narrator. ये नरेटर है, कहानीकार है, कहानी बतलाने वाला है. और हैरिस और जॉर्ज which you are watching on the screen, these two other person are there in form of friend of Jairam K. Jairam. ये इसके friend हैं. So let's start. Now I said, who is I? I is used for author Jairam K. Jairam. I said I would pack. मैंने कहा कि मैं पैकिंग करूँगा. I rather pride myself on my packing. Pride means to feel proud. कहता मुझे गर्व महसूस होता था अपनी पैकिंग स्टाइल पर. And packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. And I felt that the packing was one of the capability which I had in my life rather than other person. और मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं पैकिंग करना दूसरे लोगों से बेहतर तरीके से जानता था. यानी अच्छे तरीके से दूसरे लोगों की बजाय अच्छे तरीके से मैं पैकिंग करता था. ये ऐसा मुझे अनुभव होता है. It surprises me myself sometime how many such things there are. और ये कभी कभार जो है मेरे को सरप्राइज भी करता है, हैरान कर देती है ये चीज़. हाउ मैनी सच थिंग देयर आर, कि ऐसी कितनी चीज़ें हैं संसार में जिनको क्या नाम है, कुछ लोग ये समझते हैं कि वो एक्सपर्ट है उनको करने में. I impressed the facts upon George and Harris and told them that they are better leave the whole matter entirely to me. I impressed the facts. कहता मैंने जॉर्ज और हैरिस को जो है ये बोल ही दिया आखिरकार कि वो इस काम को मेरे लिए छोड़ दें. यानी by watching the way of packing, I thought that it would be better that I myself should do packing work. उनकी पैकिंग स्टाइल को देखकर मैंने ऐसा अनुभव हुआ कि मैं उनको बोल ही दूँ, और मैंने आखिरकार बोल ही दिया कि वो पूरा काम मेरे ऊपर छोड़ दें. They fell into here. Fell into means accepted, स्वीकार करना.
उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली, ये सुझाव स्वीकार कर लिया। विद अ रेडीनेस, रेडीनेस मीन्स तत्परता, पूरी तैयारी के साथ, पूरी जल्दी के साथ। एंड दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। अनकैनी मीन्स स्ट्रेंज। और ये चीज़ मुझे बहुत ही अजीब सी लगी कि एक बार कहते ही उन्होंने पैकिंग करना मेरे लिए छोड़ दिया। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर। नाउ यू आर वॉचिंग हेयर, जॉर्ज स्प्रेड। स्प्रेड मीन्स फैला देना। जॉर्ज ने अपने आप को फैला दिया। कहाँ पर? इजी चेयर पर। एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स। कॉक्ड मीन्स बेंट द लेग्स ऑन द नी एज ही सेट। जैसा आप देख रहे हैं, ये एक पाँव के ऊपर दूसरा पाँव रखना, इसको बोलते हैं कॉकिंग स्टाइल। हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल। और उसने अपने जो पाँव हैं वो एक दूसरे पाँव के ऊपर रखते हुए टेबल के ऊपर रखे। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड। इंटेंडेड मीन्स प्लान। What I had meant, of course, was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my direction. Potter about का मतलब है do something unimportant thing। कहता है कि ये मैंने कभी इस बात की प्लानिंग भी नहीं की थी कि मेरे कहते ही वो इस काम को, पैकिंग करने के काम को छोड़ देंगे। कहता ये प्लानिंग तो मेरी ये थी, या सोच तो मेरी ये थी, यानी जैरम जो नरेटर है वो बताता है कि मैं सोच तो ये रहा था कि आई शुड बॉस द जॉब। बॉस मीन्स आई शुड सुपरवाइज द वर्क ऑफ हैरिस एंड अदर पर्सन in form of George, that I should supervise them just like a boss. Whatever the packing style they had, I should supervise that packing style. But anything reverse had happened. लेकिन कोई चीज़ उल्टी हो चुकी थी। जो मैंने सोचा था वो उसके बिल्कुल विपरीत। अब सुपरविजन का काम वो कर रहे थे और मैं पैकिंग कर रहा था। कहता है कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि वो छोटे मोटे काम करें मेरी डायरेक्शन के तहत, यानी मैं उनको बताऊं कि आप ये करो, आप वो चीज़ उठाओ वहाँ से, इसको यहाँ पैक करो, उसको यहाँ पैक करो, लाइक दैट। आई पुशिंग दैम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओ यू हियर लेट मी डू इट। एंड आई वांटेड दैट I should push them aside by saying that, oh you, here let me do it. कहता है कि मैंने तो ये सोचा था कि मैं बीच बीच में उनको एक तरफ धकेलूं और ये कहूँ कि आपने ये गलत किया, और मैं ये कहता कि मुझे करने दो। यानी मैंने ये प्लानिंग की थी। जो नरेटर है जैरम, वो ये सोचता है कि मैंने तो ये सोचा था कि मैं उनको बीच बीच में ये कहते हुए एक तरफ धकेलूं कि आपने ये गलती की, आपने वो गलती की, और मैं उनको कहता कि आप मुझे करने दीजिए। देयर यू आर सिंपल एनफ रियली टीचिंग देम। मैं उनको कहता, सिखाता कि ये बहुत ही आसान है। एज यू माइट से, they are talking it in the way they did irritated me. Now here the narrator is saying they are talking. Who's talking? Talking of Harris and George. कहता है कि उनकी जो बातचीत चली हुई थी, in the way means whatever the work of packing which was going on, in between that work, whatever they are talking, that irritated me a lot. यानी मेरी पैकिंग करते वक्त उनकी जो बातचीत चली हुई थी, उस बातचीत ने मेरे को बहुत ही इरिटेट किया, बहुत ही
क्या किया? इरिटेट का मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करना, ये कहिए कि मेरे स्वभाव में चिड़चिड़ापन पैदा किया। There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. Now, narrator Jairam tells us that whatever the irritation work that he gets at that time, when other people, by sitting uselessly, interfere in my work when I'm doing any type of work. यानी वो कहता है कि मुझे वो चीज़ बड़ी चिड़चिड़ी लगती थी जब मैं पैकिंग कर रहा हूँ या मैं कोई काम कर रहा हूँ और दूसरे लोग आराम से बैठकर मेरे को देखते हों। ये चीज़ मेरे को बहुत ही खलती थी, बहुत ही बुरी लगती थी, बहुत ही चिड़चिड़ापन मुझे महसूस होता था इस बात में कि दूसरे लोग आराम से बैठकर मेरे काम को देखें। I lived with a man once who used to make me mad that way. कहता है I lived with a man, एक ऐसे व्यक्ति के साथ मैं रहता था एक बार, who used to make me mad that way, जो मेरे को इस तरह से पागल बना दिया करता था। He would loll on the sofa. Lull means to recline or to lean in a relaxed manner, यानी जैसे ये बच्चा सोफ़ा के ऊपर आराम से लेटा हुआ है, इसको बोलते हैं टू लल। कहता है कि ही वुड लल ऑन द सोफ़ा, वो व्यक्ति सोफ़ा पर लेटा होता था, एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाई आर टुगेदर, और मेरे को देखता रहता था घंटों तक जब मैं काम कर रहा होता था। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही खलती थी, बहुत ही मेरे स्वभाव में चिड़चिड़ापन पैदा करती थी। He said it did him real good to look on at me messing about. Messing about means to waste time doing something without a particular purpose, यानी useless thing कह लीजिए। He said it did him real good to look on at me. वो व्यक्ति कहा करता था कि इसे वो बहुत अच्छा लगता था, यानी उस व्यक्ति को मैं काम करता हुआ बहुत अच्छा लगता था यूजलेस वे से। कहता ये चीज़ मुझे बहुत ही इरिटेट करती थी। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, कहता अब मैं ऐसा नहीं हूँ। आई कांट सिट स्टिल, मैं आराम से नहीं बैठ सकता। एंड सी अनदर मैन स्लेइंग एंड वर्किंग, और दूसरे व्यक्ति को काम करते हुए, स्लेव मीन्स नौकर कह लीजिए, दास कह लीजिए, और एक दास की तरह, एक नौकर की तरह दूसरे व्यक्ति को काम करते हुए नहीं देख सकता। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिटेंडेंट, मैं खड़ा हो जाना चाहता हूँ, और सुपरिटेंडेंट मीन्स सुपरवाइज, और देखना चाहता हूँ, अपनी देख रेख रखना चाहता हूँ। एंड वॉक राउंड विद माई हैंड्स, और मेरी चाहत ये है कि मैं दूसरे व्यक्ति को सुपरवाइज करूं, घूमते घूमते अपने पॉकेट में, पैंट की जो पॉकेट हैं उन पॉकेट में, जेबों में हाथ डालकर मैं दूसरे व्यक्तियों को सुपरवाइज करूं, देखूं, जांचूं। एंड टेल हिम, और दूसरे व्यक्ति को बताऊं व्हाट टू डू, कि वो क्या करे क्या ना करे। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, आई कांट हेल्प इट। कहता ये मेरी एनर्जेटिक नेचर है, मतलब मैं हर समय काम करना पसंद करता हूँ, और मैं आई कांट हेल्प इट मीन्स आई कांट स्टॉप इट। व्हाट आर द एनर्जेटिक नेचर आई हैव, आई कांट रिमूव दिस एनर्जेटिक नेचर फ्रॉम माई कैरेक्टर। मैं अपने कैरेक्टर से इस एनर्जेटिक नेचर को, काम करने के, हर समय काम करने के मूड को नहीं बदल सकता। नेक्स्ट स्लाइड। However, I didn't
से एनीथिंग बट स्टार्टेड द पैकिंग, मैंने कुछ नहीं कहा और पैकिंग करना शुरू कर दिया। जैसे ही नरेटर कहता है, जैसे ही मैंने उनको कहा कि आप हट जाइए तो वो हट गए, बैठ गए और मैंने अपनी पैकिंग शुरू की। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वाज गोइंग टू बी, और मेरे को ये लगा कि ये बहुत ही लंबा काम हो गया था जो मैंने सोचा भी नहीं था। यानी मेरी सोच के विरुद्ध ये जो प्रोसेस था पैकिंग करने का, ये लंबा चला गया था। बट आई गोट द बैड फिनिश एट लास्ट, लेकिन आखिर में मेरे को जो है जो अंत में मेरा अनुभव जो है बहुत ही ख़राब मुझे देखने को मिला। एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट, और बट आई गोट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, और आखिर में मैंने बैग को फिनिश किया। फिनिश का मतलब अपनी बैग के अंदर पैकिंग करने का जो काम था वो फिनिश किया, ख़त्म किया, और इसके ऊपर मैं बैठ गया। एंड स्ट्रैप्ड इट, और इसको स्ट्रैप किया। स्ट्रैप मीन्स क्लोज्ड इट, इसको बंद किया। नेक्स्ट, aren't you going to put the boots in? Sorry, due to some reason I couldn't keep the video on. Aren't you going to put the boot in? Aren't you going to put the boots in? Now, Harris asked whether I had put the boots, whether I had put the shoes inside the bag. यानी पैकिंग करते वक्त कहता है कि उसने मेरे को नहीं पूछा, लेकिन जैसे ही पैकिंग करके मैंने अपना बैग बंद किया तभी उसने पूछ लिया कि क्या आपने जूते अंदर रखे हैं बैग के। एंड आई लुक्ड राउंड, और मैंने चारों तरफ देखा। एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम, और मैंने पाया कि मैं उनको पैक करना भूल चुका था। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, कहता है कि ये हैरिस इसी प्रकार का व्यक्ति है। मीन्स वो ऐसा क्यों कहता है? बिकॉज व्हेन द पैकिंग वाज गोइंग ऑन एट दैट टाइम हैरिस डिडंट रिमाइंड हिम दैट ही फॉरगॉट टू पुट द बूट टू पुट द शूज इनसाइड द बैग। जब पैकिंग चल रही थी उस समय उसने नहीं बताया कि आप जो है पैकिंग करना, जूते पैक करना भूल गए। कहता है इसीलिए मैं कहता हूँ कि यह हैरिस ऐसा ही व्यक्ति है, इसका ऐसा ही कैरेक्टर है। He couldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped, of course. कहता है कि मुझे पता है वो कभी भी एक शब्द नहीं बोलेगा जब तक मैं अपने बैग को पूरी तरह से बंद ना कर दूं और उसको स्ट्रैप ना कर दूं, इसके ऊपर फीते ना बांध देता, तब तक वो नहीं बोलेगा। एंड जॉर्ज लाफ्ट, और जॉर्ज ये बात सुनकर हंस दिया। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ ऑफ हिज, यानी वो चिड़चिड़ापन पैदा करने वाले बेतुकी, सेंसलेस मीन बेतुकी हंसी के साथ। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, सो वाइल्ड मीन्स सो एंग्री, मैड विद एंगर, यानी गुस्से से पागल करना। और ये बात या ये व्यक्ति या इन व्यक्तियों का जो वे ऑफ
लाफिंग है, दैट मेक मी सो एंग्री एंड आई बिकम जस्ट लाइक अ मैडमैन इन दैट एंगर। और उस गुस्से में मैं एक क्या नाम मैडमैन की तरह बिहेव करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन। मैंने बैग को खोला और जूतों को अंदर रखा। एंड जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट अ हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू मी। अकर्ड मीन्स केम। तो जैसे ही मैं बंद करने वाला था बैग को, तो एक भयानक, हॉरिबल मीन्स भयानक, एक भयानक सा विचार मेरे मन में, मेरे दिमाग में आया। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, कि वो क्या विचार था कि मैंने अपनी टूथब्रश पैक की है कि नहीं। आई डोंट नो हाउ इट इज़ बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। कहते हैं मुझे नहीं पता हाउ इट इज़ बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। लेकिन मुझे ये नहीं इस समय याद आ रहा था कि मैंने उसको पैक किया है कि नहीं। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मीन्स गिव ट्रबल, यानी समस्या पैदा करना। मेरी टूथब्रश जो है एक ऐसी चीज़ है जो मेरे को तंग करती रहती है। व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ। एंड मेक माई लाइफ अ मिजरी, मिजरी मीन्स पीड़ादायक, और मेरी ज़िंदगी को एक पीड़ादायक ज़िंदगी बना देती है। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसको पैक नहीं किया। एंड वेक अप इन अ कोल्ड प्रेस्पिरेशन, प्रेस्पिरेशन मीन्स स्वेट, पसीना। एंड वेक अप इन अ कोल्ड प्रेस्पिरेशन, और उठ जाता हूँ मैं एक ठंडे पसीने के साथ। एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हॉन्ट फॉर इट, यानी जब भी मैं पैकिंग करता हूँ तो बिस्तर पर जाते ही ये याद आता है और फिर मेरे को उठना पड़ता है इसको ढूंढने के लिए कि मैंने टूथब्रश को पैक किया कि नहीं। ये आमतौर पर मेरे साथ ऐसा होता है। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, और सुबह जो है मैं इसको फिर पैक करता हूँ। आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और इसको यूज़ करने से पहले ही मैं पैक कर देता हूँ और फिर मुझे को फिर अनपैक करना पड़ता है, यानी फिर पैकिंग को खोल कर निकालना पड़ता है इसे। इसलिए ये मेरे को इरिटेटेड थिंग लगती थी। क्या चीज़? टूथब्रश। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग, और ये आखिरी चीज़ होती थी पैकिंग बैग में डालने वाली। आई टर्न आउट ऑफ द बैग एंड देन आई रीपैक, जिसको मैं बैग से निकालता था और फिर मैं रीपैक करता था और उसको भूल जाता था रीपैक करके। एंड हैव टू रश अपस्टेयर फॉर इट, और फिर मुझे ऊपर की मंजिल पर जाना पड़ता है उसको ढूंढने के लिए आखिरी पल में। एंड कैरी टू द रेलवे स्टेशन, और फिर इसको रेलवे स्टेशन पर लाना पड़ता है रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ, अपने जेब में रखे रुमाल के अंदर इसको रैप करके। रैप मीन्स लपेटना, ढकना, टू कवर अप। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मोर्टल थिंग, मोर्टल मीन्स विच में बी डिस्ट्रॉयड, जिसको विनाश होने वाली चीज़, टूटने वाली चीज़, फूटने वाली चीज़। और निसंदेह I had to turn every mortal thing out now and of course I could not find it, और फिर मेरे को जो ordinary thing, सामान्य चीज़ें थी, उनको इधर उधर करना पड़ा, लेकिन मैं इसको नहीं ढूंढ पाया। I रमेश मीन्स सर्च्ड इन अ हरिड वे, यानी जल्दबाजी में इसको ढूंढना। मैंने इसको जल्दी से ढूंढा।
the thing up into much the same state that they must have been before the world was created. और चीज़ें ऐसे लगी जैसे ये इस तरह से रखी गई हों जब ये संसार की उत्पत्ति हुई, उस तरह से बेतरकीब ढंग से रखी गई हों, ऐसे मुझे प्रतीत हुआ. एंड व्हेन क्योस रिगेन मीन्स रूल्ड, और फिर मेरे दिमाग में क्योस मीन्स कन्फ्यूजन, अफरा तफरी का शासन हो गया. यानी दिमाग में बार बार इधर उधर के विचार आने लगे. ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम ओवर, बट आई कुडंट फाइंड माई ओन. हेयर दिस लाइन मीन्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम ओवर. मेरे को जो है जॉर्ज और हैरिस की टूथब्रश जो है वो 18 बार मेरे हाथों के नीचे से गुजरी, मतलब 18 बार वो मेरे को मिली. बट आई कुडंट फाइंड माई ओन, लेकिन मैं अपनी टूथब्रश नहीं ढूंढ पाया. आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन, और मैंने अपनी चीज़ों को एक एक करके वापस बैग में रखा. एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शुक इट, और हर चीज़ को जो है अच्छे से देखा, जांचा कि कहीं टूथब्रश उस चीज़ में ना डल गई हो. देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बुट, एंड यू आर वाचिंग हेयर. नरेटर इज टेलिंग अस दैट एट लास्ट ही फाउंड दिस टूथब्रश इनसाइड हिज शूज. और आखिर में उसने ये टूथब्रश अपने जूते के अंदर, अपने शू के अंदर मिले. आई रिपैक्ड वंस मोर, और फिर मैंने दोबारा से सभी चीज़ों को रिपैक किया. सो दिस वाज द समरी टिल दिस प्लेस. सो यू विल रीड first two pages of this chapter and find out the meaning of difficult words. Whatever the word which have been given here, you will try to learn them. The meaning of those words is also mentioned. You will also try to learn them. Okay, thank you. Rest of the summary will be discussed in next video. Till then, bye.